السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. مینجمنٹ جو ہمارا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ایم بی اے لیول پہ بھی اور بی بی اے لیول پہ بھی. تو مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ بالکل بیسک لیکچر ہے. سب سے پہلے ہم مینجمنٹ کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں: دی پروسیس آف اچیونگ آرگنائزیشنل گولز بائی انگیجنگ ان 4 فنکشنز آف پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. ایک ایسا عمل جس میں ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے بنائے جانے والے گولز ان کے مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں 4 فنکشنز کو امپلائی کر کے. فرسٹ ون از کالڈ پلاننگ، سیکنڈ ون از کالڈ آرگنائزنگ، تھرڈ ون از لیڈنگ اینڈ دین کنٹرولنگ. ہر ایک فنکشن کو ہم سیپریٹلی جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو پہلا فنکشن ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے پلاننگ، منصوبہ بندی جسے ہم کہتے ہیں. The process of setting goals and deciding how best to achieve them. پہلا تو کام یہ ہے کہ گول سیٹ کیے جاتے ہیں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ مینوفیکچرنگ سے ہے، چاہے وہ سروسز سے ریلیٹڈ ہے، کسی بھی مثلا وہ بزنس کے کسی بھی جو ہے وہ فنکشن سے ریلیٹڈ ہے، اس میں سب سے پہلے گولز کو سیٹ کیا جاتا ہے کہ کون کون سے گولز ہم نے ڈیورنگ سیشن جو ہے وہ اچیو کرنے ہیں. سیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا طریقہ سب سے بیسٹ رہے گا ان کو اچیو کرنے کا. ایزی بھی ہو، لو کاسٹ بھی ہو، اور ہر شخص اس کو ایزیلی جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی پریکٹیکل لائف میں کر سکے. تو 2 چیزیں کی جاتی ہیں: ایک تو گولز کو سیٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ میں پھر وہ بیسٹ طریقے سے اس کو فلفل یا اچیو کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ہم اچیو کیسے کر سکتے ہیں. اب اس میں ایگزامپل ہماری ڈیلی لائف کی ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا پلان بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مارکیٹ سے گروسری آئٹمس پرچیز کریں گے، تو اب فوراً سے نہیں پرچیز ہو جاتے. آپ اس کے لیے پلان بناتے ہیں: ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ پڑی ہے، میں اوپر جاؤں گا، میں نے یہاں پہ جا کے یہ جو ہے وہ چیز ریسیو کرنی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے اگینسٹ میں نے پیمنٹ کرنی ہے. تو ایک چھوٹا سا پلان آپ کی پریکٹیکل لائف میں، مثلا آپ نے ایک چیز اپنے یوز کے لیے لینی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ جو ہے وہ کمپلیٹ پلاننگ کرتے ہیں. تو پلاننگ تو یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ پہلے آپ گول سیٹ کرتے ہیں، پھر آپ خود وہاں پریکٹیکلی جاتے ہیں اور وہ چیز واپس وہاں سے جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں. تو اب پلاننگ کیا ہے جو ہماری ڈیلی لائف ہے، اس میں پلاننگ کا کیا رول ہے، اس میں کیا امپورٹنس ہے؟ تو اس میں اسٹے فوکسڈ آن دی گول. جس وقت آپ پلاننگ کرتے ہیں تو ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ میں نے الٹیمیٹ ریزلٹس پہ پہنچنا ہے. الٹیمیٹلی گولز جو ہیں یہ ایٹ دی اینڈ ریزلٹس پہ پہنچتے ہیں کہ میں نے ان سے ریزلٹ کیا لینا ہے. تو آپ فوکسڈ رہتے ہیں، آپ ہر وقت اس کے متعلق سوچتے ہیں، آپ ہر وقت جو ہے وہ اس کے متعلق چکنا رہتے ہیں. آپ جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم آپ ان ایسی ایکٹیویٹیز پہ کنزیوم کرتے ہیں جہاں پر آپ کے گولز کو ایزیلی جو ہے وہ فروٹیبل ریزلٹس تک پہنچایا جا سکے. نمبر 2، اسمال آئیڈیا کین بیکم بگ ریئلٹی. چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے، بہت بڑی حقیقت بن جاتی ہے. اس کی ایگزامپل چونکہ ہم کرنٹلی میں نے خود ایک چھوٹا سا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ فورم کے نام سے. تو اب انشاءاللہ وہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے، وہ ہمارا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں گے جنرل پبلک کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ امپاورمنٹ میں لائیں گے، ساری چیزیں. تو انشاءاللہ یہ آج ایک چھوٹا آئیڈیا ہے، آج سے کچھ سال بعد یہ ایک ریئلٹی بنے گی. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ویلفیئر کے پروجیکٹس آج سے 10 سال پہلے شروع کیے ہوں گے. تو محنت کرنے کے بعد، اسٹرگل کرنے کے بعد، اچھی پلاننگ کرنے کے بعد آج کیا ہے، آج وہ ایک ریئلٹی ان کے سامنے ایک حقیقت بنی ہوئی ہے. یا جیسے ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ایدی ہے، تو ایدی نے جو ہے وہ انہوں نے ایک اسٹارٹ میں بیسک چھوٹے لیول سے ایک ویلفیئر کی ایک ایکٹیویٹی اسٹارٹ کیا. آج جو ہے وہ ایک پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جانے والی ایک ریکگنائزڈ آرگنائزیشن بن چکی ہے. تو کیا ہے، چھوٹا سوچ ہوتی ہے، چھوٹا سا آئیڈیا لے کر انسان اس کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت کا روپ دار لیتا ہے. فلفل یور ڈریمز. آپ اپنے ڈریمز کو پورا کر سکتے ہو. آپ کس سپیڈ سے آگے جانا چاہتے ہو، آپ اپنے ساتھ والی آرگنائزیشن سے کیا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیجز حاصل کر سکتے ہو. اس کے علاوہ کانفیڈنس آپ میں آتا ہے جب آپ کسی چیز کو اکارڈنگ ٹو پلان اور ریزلٹ اورینٹیڈ بناتے ہو، تو آپ میں اور زیادہ کام کرنے کا جو ہے وہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ڈائریکشن ایک خاص سمت ہے، ایک خاص
जो है वो आप अपनी लाइन में रहकर अपनी चीज़ों को जो है वो हासिल करते हो। और एट द एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक प्लान आपने मुरतब किया, प्लान आपने बनाया, नहीं चल सका, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से नहीं चल सका, मार्केट में ऐसे फैक्टर्स आ गए कि आपका वो प्लान जो है वो फेल हो गया, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, बेचक है, आप दूसरा प्लान बना सकते हैं, आप थर्ड प्लान इंप्लीमेंट। तो आप क्या होता है, जैसे जैसे आप जब आपके पास जब एक्सपीरियंस गेन होता है तो आप इन सारी चीज़ों की हेल्प से एक अच्छे प्लान को जो है वो प्रैक्टिकली मार्केट में फुलफिल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है गोल्स को अचीव करने के लिए, प्लानिंग। तो मैंने प्लानिंग आपको समझाई कि गोल सेट किए जाते हैं और फिर डिसाइड किया जाता है किस तरीके से इनको हासिल किया जाए, और फिर मैंने उनके कुछ एडवांटेजेस या कुछ इंपॉर्टेंस बताई है कि गोल्स की प्लानिंग क्यों जरूरी होती है। सेकंड पार्ट जो इसका है वो हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, मुनज़्ज़म तरीके से किसी चीज को करना। द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग एंड अरेंजिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज सो दैट द प्लान कैन बी कैरिड आउट सक्सेसफुली। देखें, एलोकेट करना, बहुत सी चीजें आपके पास मौजूद है लेकिन आप उनको प्रॉपर्ली यूज नहीं करते, तो आपका प्लान जीरो हो जाएगा। प्लान को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करवाने के लिए उसको अच्छे तरीके से एलोकेट करें और अरेंजिंग तरीके से ह्यूमन इंसानों को और नॉन ह्यूमन चीजों को और इंसानों को उनके प्रॉपर वे में इस्तेमाल करते हुए जब आप उस प्लान को आगे लेकर चलते हैं और एट द एंड वो प्लान जब सक्सेसफुल होता है तो आपका बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हासिल करने के लिए आप इजीली अपने प्लान को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं और वहां पे आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो इंसान को भी, जो आपसे मैनेजर्स के या जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर बैठे हुए बंदे, चाहे वो प्रेसिडेंट है या कोई भी शख्स है, उसके से नीचे रिलेटिव जितने भी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं, उन सब को जब आप प्रॉपर्ली यूज करेंगे और फिर उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर चलेंगे, उनकी मदद से आप अपने गोल को जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को बहुत बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स मैं ऐसे कहता हूँ कि मसलन आपने प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स बनानी है, बुक ऑफ अकाउंट्स बनानी है, तो ये किसी एक शख्स की काम नहीं है, ये आप ऊपर से उसे गाइड करेंगे और अकाउंटेंट जो है वो इसे बेहतर तरीके से मेकिंग सेल्स रिकॉर्ड, कितनी सेल्स हमने की है, कि लास्ट मंथ कितनी थी, उससे प्रीवियस मंथ कितनी थी, नेक्स्ट कितनी होनी चाहिए, ये चीजें। इसके अलावा बुक कीपिंग, डेली का रिकॉर्ड जो है वो आपकी बुक में होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल जी, अब डे बाय डे आपकी क्वालिटी बेहतर होगी तो आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट कर सकेंगे। ये बात याद रखें, आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए अपनी क्वालिटी को जो है वो चेक एंड बैलेंस में रखना पड़ेगा। इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल, कितनी इन हो रही हैं चीजें, कितनी आउट हो रही हैं, इनकम्स और आउटकम्स का जो है वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। जी, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब आप ऑर्गेनाइज तरीके से, सूटेबल तरीके से, प्रॉपर तरीके से ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स को यूज करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पर उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कोई शख्स भी जो है वो फजूल में बैठा नहीं होता, उसको जो आप एक्टिविटी उससे करवाना चाहते हैं या उसको जो आप डिवीजन करना चाहते हैं कि ये आपका जो है वो हिस्से का काम है, तो फिर वो आप उससे मैक्सिमम जो है वो फायदा उठा सकते हैं। उसको मैक्सिमम यूज करके प्रोडक्टिविटी को आप ज्यादा से ज्यादा जनरेट करके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, इस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज तरीके से आपने इसको लेकर चलना है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव, ऐसे शानदार तरीके से आपने मैनेजमेंट करनी है कि उससे जो है वो सूटेबल या इफेक्टिव, फायदेमंद, मुफीद जो है वो असरात जो है वो आपकी प्रोडक्ट पे मुरतब हो। मसलन आपने इतना जो है वो प्रॉपर एक फ्रेमवर्क में काम को लेके चलना है, आपने प्रॉपर जो है वो पेपर वर्क करना है, आपने हर एक शख्स की अलग अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम आपने करना है, ये इसने करना है। तो एक प्रॉपर वे में जब काम होगा तो वो शानदार तरीके से, ये डिपेंड करेगा मैनेजर पर। मैनेजर जो है वो इतने एफिशिएंट तरीके से किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा जिससे इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो आपके प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट इज अथॉरिटी, AUTHORITY। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप। देखें,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो इस चीज़ पर परेशान होते हैं कि मेरी अथॉरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आप सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी उसको बताएं और उसको ये अथॉरिटी कि ये आपके पास इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और इन अथॉरिटीज़ को आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो किसने किसके सामने जवाब देना है, ये असल चीज़ है, ये एक रिलेशनशिप है। जिस वक्त सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे तो जो है वो मैनेजमेंट बेहतर तरीके से जो है इन प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। मसलन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, मेरी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। और मैंने ये सारा करने के बाद किसके पास, किस अथॉरिटी के पास जाना है, वो रिलेशनशिप जब मजबूत होगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हासिल करना आसान हो जाएगा। और बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सारा कुछ किसी एक शख्स या किसी एक डिपार्टमेंट की मदद से नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जब वो सारे एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से एक खास एम को लेकर, एक मकसद और जो है वो ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेंगे तो उस कोऑर्डिनेशन की मदद से जो है वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। एट द एंड इन सारी चार चीजों का मकसद प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आम आदमी से लेकर ऑर्गेनाइजेशनल का जो हेड है वहां तक हर शख्स जो है वो सेटिस्फाइड होगा। जब अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी प्रॉपर काम कर रही होगी, एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट चल रही होगी और ऑप्टिमम ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। जब इंक्रीज होगी तो आपकी सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन है ये डिपेंड करती है इन चार फंक्शंस पर। तो ये इसकी चंद पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस के हवाले से। इसके अलावा अब मैंने इसको एक चार्ट की सूरत में भी आपके सामने कर दिया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज होती है। इसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ से ले तो हम एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं, हम एक मकसद लेकर चलते हैं, हम एक पर्पस लेकर चलते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं, सारे लोग मिलकर उस पर काम करते हैं। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर बहुत जरूरी चीज है, भाई किसका क्या काम है, हर एक तकसीम काम को तकसीम करें कि किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है। ये नहीं है कि जो आया उसने उसका काम कर दिया, उसने उसका कर दिया। उससे क्या होगा, उससे काम तो हो जाएगा लेकिन वो परफेक्शन नहीं आएगी। क्योंकि अगर एक ड्राइवर है तो ड्राइवर का काम ड्राइवर कर सकता है और एक अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का ड्राइवर, ड्राइवर का अकाउंटेंट नहीं कर सकता। इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर करना ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, जहां कहीं फंस जाए आप जो है या जहां कहीं आपके लिए मुश्किलात पैदा हो, मुश्किलात आती हैं तो आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। इसको बेहतर तरीके से किस तरह, और जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी भी पता होगी। जब ये सारी चीजें होंगी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, प्लानिंग चूंकि आप पहले ऑलरेडी कर चुके पहला पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में ऑर्गेनाइजिंग जब बेहतर तरीके से होगी तो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हासिल करना, अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। इंशाल्लाह इसके जो है वो सेकंड पार्ट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इससे बेहतर वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स।